Okay, sir. So it's starting now. First of all, welcome to the podcast, sir. Thank you so much for accepting the invite. Most welcome, most welcome. It's been an honor to have you here. And you have been doing amazing work for all the FMGs. We have been very grateful to you. Like every FMG knows you, and you have been really famous among us also. And I did my FMG exam in 2020 December, and I watched myself some of your videos. That time you were doing like free videos on YouTube. Yes. Your classes But used to now happen also, there. it's not stopping. Yes, sir. In Yes, fact, sir. it's increased. Now we are having more content, more subject, more things. Correct, sir. Correct, sir. So it was really helpful. So your concept, the way you teach, it was really amazing. So personally, first, before asking anything, I would like to thank you for everything. Most welcome. So सर what I would be asking कि आप क्या कहेंगे सर जो लोग FMG अभी जिन्होंने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया है और जो जिनका भी जून में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, what should they do now? How should they start preparing from now? Because अभी तो 6 महीने हैं उनके पास. So first thing is remember it's not 6 months. Correct. Because sir. very soon the time will pass and you need time for revision also. So जी. if they spend too much time on finishing the subject, they will not get time for revision. So they need to have a proper plan. Correct So sir. first thing is they should take a diary, pen, paper and start writing. जी. And first is note down ki yes, December is my day of the exam. Okay, and for that I have to prepare now. जी So sir. I have these many days. Like I have 180 days, Correct and I sir. finished 19 subjects. So it's not कि I'll give 10 days each subject. सही बात है सर. So there are subjects which are important, which require more timing. Some will require less. So I think that we'll share very soon. Okay, the timing and the breakup, and then I have to look ki which subject I need to give more preference. Okay, Correct and you sir. cannot do them separately because that is a misnomer in exam. This time also the questions are all integrated. Correct Like you sir. cannot differentiate a question of physio from patho or from medicine. Correct sir. Even after sir 2020 August exam, it became like more clinical. More So I think they clinical are sir. continuing the same trend. The questions are clinical. They have a relevance. कि अगर Correct, आपको नहीं आता पेशेंट तो जो भी आप कुछ करें, मैं ये बोलता पढ़ाते हैं जी. पेशेंट के बारे में सोचो. जी जी. इवन दे आर गिविंग अ सिंपल ट्रांसफर ऑफ सोडियम विद ग्लूकोज, वो ऐसे बोलेंगे पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखी है, शॉक की स्टेट में, आपको से ओआरएस देना है. बिल्कुल. तो इसमें ट्रांसपोर्टर कौन सा यूज? क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रांसपोर्टर फिजियोलॉजी, बिल्कुल बट सर. आस्किंग दिस फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? क्लिनिकल बना के पेशेंट पूछना आएगा, है. हाँ, तो बिल्कुल सर. आपको एज अ डॉक्टर A to Z पता होना चाहिए उसके बारे में. सही है सर. सही. तो सो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप इंटीग्रेट करके पढ़ो. आप इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते सब्जेक्ट. आप बिल्कुल फार्मा सर. पढ़ने बैठे हो पर आपको फिजियो नहीं आती, जी सर. आपको पैथो नहीं आती, तो आपको कैसे करें? करेक्ट सर. वो करेक्ट सर. थोड़ा सा इश्यू हो जाता है. करेक्ट सर. ठीक है ना? तो सर पहले अवॉइड दैट विल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जी सर. जी सर. या बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. ये तो So बहुत they ही should वैलिड make a पॉइंट. plan कि I will start with basic subject like physio, फिजियो. I'll do patho pharma, जी. and then I will go for medicine. करेक्ट सर. बिकॉज And do them in the beginning, yeah. आफ्टर डूइंग फिजियोपैथो फार्मा लाइक सर बेसिक बेस तो मेडिसिन का बन ही गया ऑलरेडी. That's true. दैट्स ट्रू. ओके सर. तो व्हाट अबाउट सर ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मतलब कहीं लिंक नहीं करते, जैसे माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा अलग सा पड़ जाता है, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अलग सा है. Microbiology is again related to PSM, करेक्ट. to medicine, surgery. जी तो सर. वो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. करेक्ट अब सर. पेशेंट आया मेनिंजाइटिस का, अब उसमें वो कल्चर मीडिया भी पूछ सकते हैं आपसे, जी उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पूछ सकते हैं आपसे, जी. उसका पूछ सकते हैं. इस बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस के ऊपर, जी जी. in which they were just giving the picture, CSF findings, हम्म. and there was no picture to identify the organism. हम्म. So it was a viral infection. So they said that the protein count is slightly increased and the glucose is normal. So it's a viral infection. So Correct. they were asking what to do. So obviously you cannot do a staining for that. You Correct. can't stain viruses. करेक्ट सर. You do serological investigation. That's why you have to learn micro-integrate the diseases. करेक्ट सर. करेक्ट सर. वेरी That's why I will request them not to read the subject, जी like सर. trying to read bacteria, staphylococcus. No, don't read that. करेक्ट सर. What it causes. Sir, And what you do if a patient have staphylococcal infection, Correct. MRSA, VRSA. So that's what I actually wanted to do. Integration. That's very true sir. Ratifying time is gone sir. Now everything is तभी तो conceptual. शिकायत करें. अभी क्या है, we were doing chanting in the end. Okay? तो कई जी. बच्चे कहते हैं chanting से क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, जी. क्योंकि आप लोग chanting को as a main यूज कर रहे हो. जी जी. Chanting is the summary of everything. करेक्ट. आप पढ़ने के बाद chanting करोगे, सब रिकॉल हो जाएगा. करेक्ट क्लियर? सर. आप करेक्ट. chanting में से क्लिनिकल क्वेश्चन ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है. ये Right, आपके sir. लिए कि आप एग्जाम में पढ़ो तो आपका फटाफट रिकॉल. अब चैंटिंग में क्वेश्चन दे रखा है बैटल साइन. जी. चैंटिंग में याद करेंगे बैटल साइन इज सीन इन दिस. अब आप बोलो कि सर हमें क्वेश्चन आ गया था, पेशेंट गिर गया, ये आ गया, Basal skull fracture का. अभी बात हो जी, आपको ये हम थोड़ा बताएंगे उस टाइम पे कि ब्रूजिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस सीन इन दिस. सही एक बात. लाइन याद कराएंगे सही आपको बात. वर्ड क्या बैटल साइन सीन इन दिस फ्रैक्चर.
बेसिक्स Clear? में तो अभी जी सर, आपके करेक्ट, ऊपर है कि आपने पूरा क्यों नहीं पढ़ा। सही बात, अब जैसे उसमें फोटो आई थी कोबरा की, वो पूछा कौन सा टॉक्सिन है, करेक्ट, तो आपको चैंटिंग में ये याद करा दिया कि इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन, उसमें ये पूछा कैसे एक्ट करता है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो कैसे। तो दैट इज व्हाई आई वांट पीपल टू इंटीग्रेट, लर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड गो प्रॉपर कांसेप्ट्स। वंस दे मेक द कांसेप्ट, देन दे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड देन फॉर द एंड लास्ट month to month they should only focus on rapid revisions and चैंटिंग्स एंड लास्ट में सर, बिकॉज लास्ट में बहुत सारी चीजें रिकॉल करनी मुश्किल हो जाती हैं, तो चैंटिंग्स वुड हेल्प इन दैट, मगर कंसेप्ट तो सर पहले से ही बनाना पड़ेगा। तो कह रहा हूं ना, आपको जोड़ना तो पड़ेगा ना। If you don't join and you just want to read selective point, then becomes a factual knowledge। करेक्ट, और फैक्ट्स पढ़ के एग्जाम क्लियर तो वही बात है कि मैंने पढ़ा है 2 into 3 6 है, 3 into 3 9 है, एग्जाम में आ गया 4 into 3, ये तो पढ़ा नहीं है हमें। एब्सोल्युटली ट्रू सर, मैथ्स कैसे लगाना है, हाउ टू मल्टीप्लाई, आप चाहते हैं मैं आपको हर, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई कांट टीच यू द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी कैलकुलेशन, सही आई बात, विल टीच यू द कैलकुलेशन इटसेल्फ, हाउ यू मल्टीप्लाई। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। तो सर व्हाट वुड यू से टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने 1-2 ड्रॉप दे दिया है, जिनका 3rd 4th अटेम्प्ट है, क्योंकि आफ्टर 1 or 2 अटेम्प्ट्स पीपल का मोरल वैसे भी बहुत डाउन हो जाता है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? First is my suggestion is based on their marks, okay? जी. If they get very low score like 100, 110, then I think they have a lacking in their concepts. They are somewhere not getting their concepts right. That's why they're failing and getting low marks. Right. They should read properly. Right, They sir. should take something, okay? Because आप जब खुद पढ़ते हैं ना, आपका एक वो होता है, जैसे मुझे भी मान लो कुछ चीज सीखनी है, लेट्स से आई वांट टू लर्न मैनेजमेंट, जी, or maybe I want to go into research and learn computers, I will not try to self study. जी, तो मुझे पता है कि मैं एक लेवल से नहीं सीख पाऊंगा, एक्सपीरियंस पर्सन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हैव टीचर्स टू शेयर। मेरा यही सेशन है कि यू टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग, ओके, बट शुड हैविंग अ गाइडेंस। अब मुझे पता नहीं कितने पेज पढ़ना है, आप नोट्स खरीद के ले आए मार्केट से, ठीक है, अब आप उनको पढ़ना शुरू करते हो, और जो नोट्स बता रहा है उसकी पूरी बात तो आपकी समझ में नहीं आई ना। क्लास में जो हम बोलते हैं उसका कुछ पार्ट बच्चे लिखते हैं जो हम स्टेज पे लिखते हैं। ट्रू सर, बहुत कुछ जो वर्बल था, समझाया था, एग्जाम्पल था, वो तो आपने वो तो स्किप आउट हो जाता है सर, स्किप हो गया, दैट इज वाई। तो अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, कोई ऐप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लासरूम में कोई दिक्कत नहीं, पर माई रिक्वायरमेंट इज कि जिनके मार्क्स कम है दे शुड नॉट गो फॉर सेल्फ स्टडी, करेक्ट, ठीक है, दैट विल बी अ वेरी डेंजरस स्टेप। वो रिस्क लेने की नहीं, क्योंकि 2 एग्जाम बचे हैं। हाँ सर, और टाइम इज ऑफ एसेंस, अभी तो टाइम इज ऑफ एसेंस, और नेक्स्ट का कुछ पता नहीं कैसा आएगा, क्या आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट श्योर, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो जिनका है चांस, जो दे सकते हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करके जून और दिसंबर एग्जाम तो क्लियर कर लो। और ये तो जून तो मेरे पास है, तो दिसंबर में तो कर ही लूंगा, वो तो और रिस्की है, वो तो और भी रिलैक्स होके फिर सर गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरे 6 महीने की बात है, 6 महीने में आप अपनी पीजी कर सकते थे, आप जॉब भी करते, तो आपकी 18,000 की सैलरी होती है, मतलब 6-7 लाख का नुकसान है आपका। सही बात है, नॉट पासिंग एंड जॉइनिंग समथिंग। सही बात है, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। फिर सर नोट्स वाली बात जो आपने कही वो बहुत ट्रू है, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर को सुन के भी दो बच्चे भी नोट्स लिखते हैं, तो उनके 2 नोट्स में भी बहुत डिफरेंस मिलता है, और कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आया, उसमें किससे पूछोगे? हाँ, करेक्ट है सर, उसमें कुछ छोटा और लिख दिया उसने, दे नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप सिर्फ नोट्स लाके मत पढ़ो, ठीक है। आई नो अगर फाइनेंशियल कुछ इशू है तो वी हैव ऑल द लेक्चर अवेलेबल, करेक्ट सर, ऑन YouTube, राइट सर, फिजियो पढ़िए, दे कैन हाँ वॉच, दे कैन द मेडिसिन, फार्मा, ऑप्था, दैट्स देयर सर। ऐसा नहीं है कि आपको पैसों की कोई वो है, ठीक है। अगर पैसों का सही में जेन्युइनली कुछ है, देन देयर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट सर। ज्यादा पैसे हैं तो फैकल्टी बोर्ड में घर आके मुझे पढ़ाते हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अब अम्बानी का कोई बच्चा होगा तो ये बोल सकता है ना कि पापा मेरे लिए घर में आप खोल दो, घर में भी बोल देंगे, पर ठीक है ना, अब नहीं है पैसे तो फिर मैंने कहा आपको कि इट्स अवेलेबल आल्सो, बट डोंट गो फॉर दैट। अगर नंबर कम आ रहे हैं, देन अब आप 50 लाख की डिग्री करके आ गए हो, तो अब आप और थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकते। सही बात है सर, बहुत सही बात। ज्यादा है तो मैंने कहा है कि यू कैन आस्क अस, वी विल प्रोवाइड सम हेल्प, ठीक है ना। Right. आपको अगर चाहिए फ्री लेक्चर के लिंक, तो आप टेलीग्राम पे वी कैन ऑलवेज शेयर ऑल द लिंक्स एक्सेट्रा। राइट सर, राइट सर। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप मेंटल, काफी लोगों का मेंटल स्टेट काफी गड़बड़ हो जाता है, मतलब बहुत लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फैमिली प्रेशर भी काफी लोगों पे होता है, कई तरह के प्रेशर होते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल। तो उन बच्चों को आप अपनी तरफ से, लाइक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे कि कैसा अपना मेंटल मोरल बना के रखना है? नहीं देखो, मैं आपसे उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि जिनकी कम नंबर है उनके तो करना है, जिनके 130s है, 40s है, उनका सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, कहीं ना कहीं उनका क्या है, जो रिवीजन है, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी, उसमें कमी। दे नीड टू जॉइन सम टेस्ट सीरीज, सम क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस। दे डोंट नीड टू गो फॉर एक्सटेंसिव स्टडीज। उनको मैं बोलूंगा आपको नहीं जरूरत,
जी। आप मत पैसा खर्च करो बेकार में, बार बार पढ़ने में, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। करेक्ट सर। एंड सोर्स चेंज मत करो। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन इंप्रूविंग एबिलिटीज को लेके आना है, ताकि आप सॉल्व कर पाओ। और आपको जो कंफ्यूजन थी कि दो में से एक ऑप्शन सही कैसे हो गया, राइट वो सर। बेटर करना है। तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को इम्प्रूव करो। उसके लिए अगेन, इफ यू नीड हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर एंड वी आर हैविंग more than 20,000 MCQs in our Telegram groups, Right, so they can practice. राइट सर, राइट सर, राइट सर। अब जो तीसरी बात है कि इस सब के बावजूद भी जी। अगर आपको, पहली बात है, इफ यू डोंट नो द प्रॉब्लम, जी। यू नेवर फाइंड द आंसर। अगर That's आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, जी। देन ओनली यू कैन गिव अ ट्रीटमेंट ना।